Good afternoon, online and offline students. Am I audible to everyone? ठीक है, तो start करते हैं. We have less time today. Just have a quick recap of what we have done yesterday. ठीक है, मुझे याद दिलाते रहना so that it would be a revision for you also. Yesterday we have done the map of Australia. ठीक है, एक मिनट. ठीक है, तो we'll start from top. This is the Gulf of Carpentaria, and to the north of Gulf of Carpentaria we have another sea, that is, याद है, Arafura Sea. ठीक है, further north of Arafura Sea we have a yes, Torres Strait is there. We have an island. ठीक है, and this island is connected with the Australian part with a which strait? Torres Strait. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा दिखा दिया है मैंने. Maybe the gap is narrow between these two bodies or these two land masses. And वो बताया था ना कल, अभी बताते हैं, रुको तो सही. This island is divided into two parts. 140-degree east longitude is dividing it into two parts. This part, that is the east of this, is Papua New Guinea. This is Papua New Guinea and this is Irian Jaya. ठीक है, and it is under the control of Indonesia. ठीक है, Indonesia is okay. Indonesia has control over this particular part of this island. ठीक है, Torres Strait हो गया. We have a Cape York Peninsula here. To the east of it we have a Coral Sea. This part is known as Great Barrier Reef. ठीक है, the largest coral reef of the world in terms of area. Or there is also a famous place, that is Gold Coast. ठीक है, यहाँ पे Gold Coast, we have a Brisbane. Gold Coast is a place that is famous for tourism. ठीक है, इधर की तरफ आओ. We have a Timor Island. And this Timor Island is separated by Australia by a sea, that is Timor Sea. ठीक है, इधर फिर आओगे तो we have a Cape Leuwin. यहाँ पे क्या है? This is, what is this? This is Great Australian Bight. ठीक है, एक बाइट यहाँ पे है and there is another bight that is in New Zealand, in the northern island, that is Taranaki Bight. Okay, the Tasmania is separated from Australia by a strait. What was that? Yes, Bass Strait. Similarly, the northern island of New Zealand is also separated from southern island by a strait, that is Cook Strait. ठीक है, यही था. इधर उधर तो ओशन वगैरह तो you all, yes, there is also Tasmanian Sea. This is the Tasmanian Sea between Australia and New Zealand. ठीक है, हाँ, this is, there is also an encounter bay here. ठीक है, और तो कुछ था? और कुछ नहीं था. Tropic of Capricorn is dividing it in two parts. On the north we have Great Sandy Desert.
वेस्ट वी हैव अ विक्टोरिया डेजर्ट, ठीक है, कलेक्टिवली वी आर कॉलिंग देम एज वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ठीक है। वी ऑल्सो हैव अ डेजर्ट और भी थे यहाँ पे, यू माइट बी सीइंग दैट गिब्सन, सिम्पसन, ठीक है, दीज आर द रीजनल नेम्स फॉर देम, गिब्सन, सिम्पसन, तनामी इज ऑल्सो देयर, ठीक है। और बताओ कुछ, डेजर्ट तो इतने हैं, ठीक है। नाउ वी हैव टू पॉइंट आउट सम माउंटेन रेंजेस, ठीक है। द वेरी फर्स्ट इज द which is of prime importance is the great dividing range. Here we have a great dividing range, ठीक है, and there is an extension of great dividing range which is known as, sir there is an emoji of hand like on my screen. Yes Rahul, yes, what's the issue, tell me, ठीक है, जब तक वो बदल लिखता है जब तक हम करते हैं, ठीक है। अल्प्स, the Australian Alps, this is Australian Alps and this is Great Dividing Range. These are the extension of or subsidiaries of, ठीक है, Australian Alps is an extension or you can say it is a subsidiary, like we have a Purvanchal Hills, Naga Hills, these Mizo Hills, Manipur Hills and all, ठीक है। यहाँ पे we have another mountain range that is McDowell, ठीक है। टू द साउथ ऑफ इट वी हैव अ मुसग्रेव, ठीक है। इसके ऊपर जस्ट यहां पे वी हैव अ प्लेट्यू, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्लेट्यू, बार्कले, बार्कले टेबल लैंड, ठीक है, दिस इज बार्कले टेबल लैंड, दिस इज अरहम, अरहम लैंड, and just to the south, just to the, ये कौन सी डायरेक्शन होगी, just to the साउथ वेस्ट, ठीक है। साउथ वेस्ट ऑफ इट क्या था, किम्बरले, देयर इज अ किम्बरले प्लेट्यू हियर, ठीक है, किम्बरले प्लेट्यू। समवन वाज आस्किंग यस्टरडे सर किम्बरले, तो yes किम्बरले, someone was also asking कि diamonds of Kimberley are famous for South Africa, but the Kimberley diamonds are famous in South Africa as well as in Australia also, ठीक है। दोनों जगह पे there is a mine of Kimberley in South Africa and this is a Kimberley plateau, ठीक है। दोनों ही फेमस हैं फॉर दिस डायमंड, ऑक्टाहेड्रल डायमंड, जो वहां पे मिलता है ज्यादा, लिख लेना भले ही, ऑक्टाहेड्रल डायमंड, ठीक है। और बताओ कुछ, वी ऑल्सो हैव सदर्न एल्प्स, यहाँ पे न्यूजीलैंड को भूल गए हम, वी हैव अ सदर्न एल्प्स हियर and southern Alps has a range or a peak, the name of the peak is Mount Cook and here the highest peak is Mount Kosciuszko, ठीक है। when we are comparing the Kosciuszko and Mount Cook, the Mount Cook is the highest, ठीक है। उसके अलावा there is a river, कौन सी रिवर थी, that it was originating from Alps, someone has clicked on raise hand via Zoom, though it is not overlapping anything yet, it's obstructing a screen or a board, एक मिनट यार, ये कैसे हो रहा है भाई, is this raised hand is visible to everyone or is it just for this guy Prince, is it everyone, so is it creating a problem for you, okay that's fine, but is it creating a problem for you, not much, ठीक है यार, क्यों तुम भी ना छोड़ो, ठीक है। so river Murray originates from Australian Alps and there is another river that is river Darling, ठीक है, this is Murray, this is Darling which is a tributary of Murray and finally eventually it drains its water into the Encounter Bay, ठीक है। यहां तक कर लिया था,
We have another river here also. There is a Mount Ruhapeu. Okay, we have Mount Ruhapeu. And what is the name of river that was originating from this place? Yes, river name was River Waikato. And this Waikato was draining into another lake, that is Lake Taipo, which is the largest freshwater lake of New Zealand. ठीक है, ये हो गया. Some lakes were also there in the southern part of Australia. Which were those? कौन सी थी? Yes, Lake Eyre, Lake Torrens and Lake Gardner. ठीक है, all three are the salty lakes. All three of them are salt lakes, but Lake Eyre is also known for rich gold deposits, gold and uranium. ठीक है, और मिनरल्स की बात करूं तो वी हैव दिस बॉक्साइट, uranium plus diamond here. Here we have iron, coal, copper. ठीक है, and this zone is one of the largest steel and industry, iron and steel industry zone of Australia. ठीक है, यहाँ पे भी we are getting क्या था यहाँ पे, iron, coal and diamond as well. यहाँ पे द पर्थ वाला पार्ट वी हैव क्या था, आयरन, लिथियम एंड बॉक्साइट. ठीक है, ये मिनरल्स थोड़ा याद रखने. while writing the answers you can draw the map, show कि भाई यहाँ they are getting the minerals and all. ठीक है, बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ तो है नहीं. बाकी तो पॉपुलेशन वगैरह तो वी हैव डिस्कस. यहाँ पे मिनरल्स की बात करूँ तो वी हैव गोल्ड, वी हैव आयरन, और क्या था, वी हैव बॉक्साइट, वी हैव कॉपर. ठीक है, यहाँ पे भी वी हैव गोल्ड प्लस कॉपर. ठीक है, एंड द मैक्सिमम पॉपुलेशन इज लाइंग विद इन द कोस्ट एरिया. ठीक है, population you will see in the coastal areas. And I think I forgot to mention one thing like yesterday, maximum population, that we know that this place, the Australia as well as New Zealand, the Europeans were the first who came and settled here. ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं, ऑस्ट्रेलिया में ओनली 10% आर नेटिव्स. Other than that, 90% are the Europeans. ठीक है, 10% are the natives and 90% of them are Europeans, and these 10% are known as aborigines. ठीक है, they are known as aborigines, local name. न्यूजीलैंड की बात करूं तो we have 2% natives and we have 98% European settlers. ठीक है, and these 2% are known as Maoris. ठीक है, these are the indigenous people, natives, indigenous. ठीक है, या फिर दूसरे फॉर्म में कहो तो आदिवासी. ठीक है, so they are only 2% and 98% are the European settlers. ठीक, और तो कुछ है नहीं, एग्रीकल्चर एंड ऑल वी हैव डन. एंड और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट के लिए मैं यही कहूँगा, देयर इज अ हाईवे इन ऑस्ट्रेलिया दैट इज अ वेरी फेमस वन.
ठीक है, दिस इज अ वेरी फेमस हाईवे, द नेम ऑफ दिस हाईवे इज द वन, एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट national highway which is circumnavigating the entire country in a one go and connecting the prime cities of any of the countries. ठीक है, इस तरह का ये एक only one है that is completely circumnavigating the entire country and joining the prime cities of any nation. ठीक है, इसको बोलते हैं the one. ठीक है, और तो कुछ है नहीं इसमें. rest we have done. Now we will move ahead. ठीक है, एक और है इसमें नेक्स्ट जो हमें करना है, दैट इज, ठीक है, एक वर्ड यूज होता है बार बार इन सम ऑफ द एनसीईआरटीज एंड सम ऑफ द बुक्स, यू विल सी द वर्ड ओशनिया इज यूज्ड. ठीक है, व्हाट डज दैट मीन? ओशनिया इंक्लूड्स व्हिच ऑल कंट्रीज? ओशनिया में आते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया, इट इंक्लूड्स न्यूजीलैंड प्लस ऑल द पैसिफिक आइलैंड्स. ठीक है, आइलैंड्स दैट आर लोकेटेड इन पैसिफिक. ठीक है, सो वी हैव टू सी द पैसिफिक आइलैंड्स. यस यस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पैसिफिक आइलैंड्स एंड ऑल. ठीक है रमन, ओके फाइन. ठीक है, सो वी हैव टू सी द रियाम, दैट इज द ओशनिक culture of these islands. ठीक है, अगर आप देखोगे तो यू विल सी के ठीक है, दिस इज पापुआ न्यू गिनी. यहाँ पे वी हैव अ न्यूजीलैंड. ठीक है, वी हैव स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स हेयर आल्सो. ठीक है, इसके अलावा वी हैव सम आइलैंड्स जहाँ पे आपका, ठीक है, ये चाइना एंड ऑल, एंड यहाँ पे वी हैव ठीक है, सो वी हैव अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हेयर, लाइक यहाँ पे जो है आपका दीज आइलैंड्स आर कॉल्ड माइक्रोनेशिया. मैं करूँ तो दिस वन, ये ऐसा जो होगा आपका, these islands have been categorized on the basis of the culture they have been following. ठीक है, although there are some controversies regarding the inclusion of some island or not, because some of the experts are saying that New Zealand must be included in, New Zealand is a part of this Melanesia. ठीक है, but some are saying no it is Polynesia. तो इसका कुछ ना कुछ चलता रहता है. बाकी जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो देख लो कि दिस इज माइक्रोनेशिया, दिस इज मेलानेशिया and this is Polynesia. ठीक है, first is Micronesia. The important features of Micronesia is that these islands in the Pacific, but they are very close to the Asia. So the social structure, that is social structure of Micronesia islands are very similar to Asia. ठीक है, मीन्स द सेम ट्रेडिशनल सोसाइटी. ठीक है, क्या क्या फीचर है हमारे एशिया वालों के? ट्रेडिशनल सोसाइटी है, रूरल एरियाज मोर डिपेंडिंग ऑन रूरल एंड ऑल. ठीक है, मोर गिविंग वैल्यूज फॉर द जॉइंट फैमिली. ठीक है, और क्या होगा? जॉइंट फैमिली है. लैंड इज कंसिडर्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस. ठीक है, वो सब चलता है यहाँ पे. ठीक है, तो वही सब जो है इज बीइंग
followed in these Micronesian islands. So the culture is very much similar to the this Asian part. And example is Kiribati Islands. Although there are thousands of islands, एक दो का देख लो, किरीबाती है, मार्शल आइलैंड्स हैं, ठीक है. यहाँ पे we have a this Kiribati Island. यहाँ पे somewhere we have a Marshall Islands. ठीक है, lot of islands are here and there. ठीक. Next is this one, that is Melanesia. Melanesia का जो है अलग है थोड़ा सा. Their culture is more aligned with the Australian culture. ठीक है. और यहाँ पे है दैट इज पपुआ न्यू गिनी, पीजी, Papua New Guinea, so we have already discussed okay, this is Papua New Guinea, this is Fiji here. And in fact Papua New Guinea is the island where you will see the highest number of indigenous people living in any part of the world or any country. Okay, there you have highest number of indigenous people lives in Papua New Guinea. ठीक है. Fiji Islands, Fiji में भी you will see a lot of Indians are here. पता है ना Fiji के बारे में? Lot of Indians were sent as a laborers by the colonial masters to this place, and since then they have been settling there, working there, और over the period of time जो है वो इंडियन ही बन गए. हिंदी भी बोलते हैं in fact lot of them. ठीक है. Melanesia हो गया. Other is this third one, that is Polynesia. Polynesian islands, they are more close to the European and American culture. ठीक है. They have European and American culture. 80% of the islands जो हैं आपके that are coral in nature, and their economic lifeline is tourism. ठीक है. Tourism is the major contributor in their economic activity. Most of the islands are coral in nature. ठीक है. Some of the prominent ones are like this Hawaii, Tuvalu, ठीक है, Samoa. ठीक है. ये दो चार का तो नाम सुने होंगे. यहाँ पे we have a Hawaii, we have Tuvalu here. ठीक है. And some of the experts are including the New Zealand in Polynesia, while some are saying that no, this is a part of Melanesia. ठीक है. ये कुछ ना कुछ अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग चलता रहेगा, but more of the sources are saying that it is a part of Polynesia. So मैंने जो है इसको I go with maximum. ठीक है. उतार लो. ओके. अभी वेट, आई विल रिपीट. वेट. अच्छा दिख नहीं रहा था. Polynesian islands, there are a lot of islands हैं. Huau है, Tuvalu, and one more fact is that most of these islands that are in Polynesia, they are facing the threat of submergence. These are facing the threat of submergence. Hawaii Island is there, Tuvalu is there, Samoa is there. ठीक है. ये सब हैं. Samoa तो locally the fact about Samoa is that the average weight of a man in Samoa is around 110.
ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत हट्टे कट्टे होते हैं वो। लाइक इंडियंस वी हैव एवरेज वेट ऑफ कितना 60 के अराउंड रहता है ऊपर नीचे, बट फॉर समोन्स द एवरेज वेट इज मोर देन 110। ओबीस नहीं है वो, वैसे हट्टे कट्टे तगड़े टाइप। लॉट ऑफ रेसलर्स आर आल्सो पार्टिसिपेटिंग देयर इन WWE एंड ऑल। आई थिंक रोमन रेंस, यू माइट हैव हर्ड अबाउट दैट गाय, वो यहीं से ही है। ठीक है बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं वहां के, तो दे हैव एवरेज वेट ऑफ अराउंड 110-120 एंड दे आर नॉट ओबीस। लिखा? Yes, Ajay, I'm repeating it. Someone is saying Aquaman is from Samoa. Aquaman मुझे पता नहीं कौन है। ठीक है, रॉक भी है, he is also from Samoa. अच्छा, रोमन इज अ रिलेटिव ऑफ दैट गाय रॉक। अच्छा अच्छा, ये भी है क्या? ओके ओके, ठीक है, गुड। कुछ बाहर की बातें भी पता होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि सिर्फ किताबों का ही ज्ञान हो। ठीक है, सो आई एम रिपीटिंग इट। Three type of islands are there which are in the Pacific, and all these three categories of islands together with Australia and New Zealand are called as Oceania. ठीक है, one category is that of Micronesia. This is Micronesia, this is Melanesia, and this is Polynesia. Micronesian islands are those islands in which the social structure is very much similar to the Asia. Someone is asking कि WWE क्या होता है? ठीक है, next is some examples are Marshall Islands, Kiribati Islands, and if you see this, that is Melanesia. There are also Papua New Guinea, Bismarck Island, Fiji. ठीक है, all these are also islands which are close to Australia. Next is the Polynesia. Polynesia are those islands where the culture is more or less aligning with the European culture or the American culture. American और European culture दोनों सेम ही है लगभग। ठीक है, अगर कुछ उसमें है नहीं। And the islands that are part of it are Hawaii, Tuvalu. In fact, Tuvalu is an island. It was in news few months back that if the submergence occurs, जो कि होगा भी obviously by the 2100, so this would be the first country to submerge, क्योंकि इसका लेवल जो है बहुत ज्यादा नीचे है सी लेवल के obviously, so this would be the first one. Already around 20 to 30 part of this island is already under submergence. ठीक है, Tuvalu is that. These are the Polynesian islands. इसमें हवाई भी है, तुवालू भी है, समोहा and all. ठीक है, and these are, most of them are coral in nature and their major economic activity is tourism. That's it. उसके बारे में ज्यादा कुछ है नहीं. So they are facing the submergence and all. That's it. ठीक है, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। चले आगे। ठीक है, एक और चीज है that is also in news from the past few months, in fact 6 months पहले की है ये। Have you heard about the Zealandia? ठीक है, बेसिकली होता क्या है, आई एम जनरलाइजिंग, द जनरल कॉन्सेप्ट इज दैट सियाल, that is top layer consisting of silicon and aluminium, floats over सीमा। ठीक है, सीमा मीन्स दैट इज अगेन सिलिका एंड मैग्नीशियम। ठीक है, इसका ज्यादा अभी वो मत करना, बट इट जनरली मीन्स कि दैट टॉप लेयर फ्लोट्स ओवर द लोअर पार्ट एंड द विजिबल पार्ट। जो कॉन्टिनेंट्स क्या है, कॉन्टिनेंट्स आर बेसिकली द गिगैंटिक लैंड मासेस। ठीक है, और कॉन्टिनेंट्स के अंदर होता है ये कि जो विजिबल पार्ट है इन कॉन्टिनेंट्स, the visible part that is which is visible to us, visible landmass is always more than the submerged one. ठीक है, the visible part is always more than the submerged one, means कि if this is an island or this is a continent, ठीक है, ये है, this is the visible part which is visible to us। यहाँ पे आपका this is C and this would be less।
ठीक है, दिस वुड बी द इनविजिबल पार्ट। ठीक है, बट देयर इज एन एक्सेप्शन टू इट, and this exception is Zealandia, where the submerged part, this submerged part is greater than the visible part, and this is happening कहाँ पे, न्यूजीलैंड के पास। पिक्चर दिखाऊंगा तो the idea would be more clear to you। ठीक है, दिखाऊं? ठीक है, ये पिक्चर थोड़ी अच्छी है, ये वाली से। लुक एट दिस, क्या ये, ये कहां से जाएगा? स्टॉप सीइंग दिस एड, वो पूछेगा व्हाई। देखो देखो, ठीक है, ये है। लुक एट दिस, दिस इज न्यूजीलैंड जो हमने कवर किया है। इट इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोकॉन्टिनेंट। ओके, दिस इज न्यूजीलैंड। अब व्हाट द जोग्राफर्स एंड एक्सपर्ट्स आर सेइंग that there is a submerged part in the this around the New Zealand, and this is what they are saying, in this particular continent the submerged part is more, the visible part is less। ठीक है, but in general cases the visible part is more, submerged part is less। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि over the period of time there might be a possibility that this would emerge or there would be an upliftment in this part, so it would be termed as a new continent। ठीक है, तो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, द न्यू कॉन्टिनेंट वुड बी कॉल्ड एज ज़ीलैंडिया कॉन्टिनेंट। अगर ऐसा हो जाता है पूरा तो इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स बल्कि। ठीक है, तो जब होगा तब होगा। करेंटली दिस इज द सिचुएशन दैट इफ दिस emerge above the audio issue, is it with everyone or is it with only with this guy Himanshu? Okay, okay, Himanshu, there might be some problem at your end। ठीक है, देखो उसको यार। So we were saying that yes, this is New Zealand, this is the submerged part, the submerged part is more than the emerged part, and the geographers and experts are saying that over a period of time there might be a possibility that this submerged part would move upward or there would be an upliftment in that। ठीक है, because some of the empirical evidences that they have gathered from this place। तो यही है ज़ीलैंडिया और कुछ नहीं है। that soon there will be a new continent। ठीक है, that's it। ठीक है, इतना ही ना। ओके फाइन, तो नेक्स्ट चलते हैं, वी विल मूव टू अंटार्कटिका। एशिया करेंगे आज स्टार्ट और कल तक खत्म भी कर देंगे सब कुछ। ठीक है ना, फास्ट कर लेंगे कल। आज थोड़ा सा जल्दी वाइंड अप करना पड़ेगा, कुछ काम आ गया है। इमरजेंसी, वन टेस्ट हैज टू बी कंडक्टेड इन दिस रूम। ठीक है, कोई नहीं। यस, क्लाइमेट, क्लाइमेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, क्लाइमेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया नहीं किया गया हमने, बताया तो था कल, वही है, ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, क्लाइमेट इज ऑल अबाउट करंट्स। करंट्स देख लो, वी हैव अ कोल्ड करंट हेयर, क्या है इसका नाम, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट। यहां पे स्मॉल पोर्शन पे वी हैव अ नॉर्थ ड्रिफ्ट वार्म करंट। यहां पे वी हैव अ ईस्ट ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट, और सॉरी वार्म करंट। एंड वी हैव अ Tasmanian cold current।
ठीक है, फर्स्ट इज दिस वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट, सिनेरियो वुड बी दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, यहाँ पे कहीं साउथ की तरफ 30 होगा बिल्कुल, अगर देखोगे तो। ठीक है ना ऐसा ही। कैन यू ऑल्सो असाइन स्ट्रॉन्ग एंड वीक करंट विद रिस्पेक्ट टू ऑस्ट्रेलिया? हाँ ठीक तो है, बताया तो, ऑस्ट्रेलिया का ही तो एग्जाम्पल दिया था कल भी। ठीक है, इफ समबडी इज आस्किंग वी विल रिपीट इट। I was saying that these currents have a tendency to deflect to the right hand side and left hand side with respect to their hemispheres, and all this is possible because of the Coriolis force. I was saying कि Coriolis force is there. Coriolis force is due to rotation of earth. ठीक है, और इसका एक ही प्रिंसिपल है, that is everything would move to right hand side in northern hemisphere and it will be deflected to left hand side for southern hemisphere. ठीक है, ये बताया था। ठीक है, कुछ भी जो होगा it will move left hand side to the southern hemisphere. अब this is in southern hemisphere, this Australia is in southern hemisphere, so means everything has to move to the left. ठीक है, इसका लेफ्ट क्या होगा? इसका लेफ्ट ये होगा। इफ इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द लैंड मीन्स इट्स अ वीक फॉर ऑस्ट्रेलिया। ठीक, यहां पे भी इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड टू हायर लैटिट्यूड, तो ये क्या होगा? लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। डिफ्लेक्शन इन द लेफ्ट मीन्स टवर्ड्स द कोस्ट की तरफ, मतलब लैंड की तरफ। तो इट इज स्ट्रॉन्ग और वीक? इट इज स्ट्रॉन्ग इन इट सेंस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वार्म करंट। यहां पे अगेन दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट डिफ्लेक्टिंग टू द लेफ्ट, उसका वहां से आ रहा है, तो लेफ्ट कौन सा होगा? ये होगा ना। तो इट विल बी वीक और स्ट्रॉन्ग? वीक वार्म करंट। अगेन दिस वन दैट इज टास्मानियन कोल्ड करंट moving in this direction and deflecting to the left, means it would be cold current and a strong cold current for Australia, but it would be a weak for New Zealand. ठीक है, it will be weak for New Zealand and strong for Australia. ठीक है, this is relative to one another. ठीक है, अब इसको देख लो टेम्परेचर को। द फर्स्ट वन इज फर्स्ट जोन, क्या होगा? कोल्ड करंट इज देयर इन द ट्रॉपिकल एरियाज, क्या होगा? अवे मूव कर रहा है बट कोल्ड करंट तो अपना इफेक्ट तो देगा। हाँ, माइल्ड टेम्परेचर इज माइल्ड प्लस देयर इज लो प्रेसिपिटेशन। ठीक है, बिल्कुल सही। सेकंड पे आ जाओ, दिस जोन, ठीक है, वार्म टेम्परेचर एंड हाई प्रेसिपिटेशन। ठीक है, दिस इज थर्ड वन, क्या होगा थर्ड वन में? warm and wet conditions होगी, because both sides we have a warm phase, on the land also we have a warm tropical area and the current is also warm, so warm plus warm makes the condition more warm. ठीक है, तो there will be warm temperature plus high precipitation. ठीक है, and that is why this area is good for the agriculture and all. खुद की रेन भी आती है, heavy precipitation भी है, and we also have artesian wells also. ठीक है, फोर्थ वन, दिस पार्ट, दिस वुड बी माइल्ड लो प्रेसिपिटेशन। ठीक है, एंड दिस फिफ्थ वाला पार्ट, इसको फिफ्थ ले लो, इसको सिक्स ले लो। ठीक है, फिफ्थ एंड सिक्स इज
लाइक कोस्टल एरियाज हैं तो वी हैव गुड रेनफॉल इफ द विंड इज ऑन शोर, ठीक है, एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेस प्रेसिपिटेशन डिक्रीजेस, ठीक है, वही वाला उसमें लग जाएगा लॉ फॉर बोथ ऑफ देम नियर कोस्ट इफ winds are on shore, ठीक है, ऑप्टिमम पीपीटी, ऑफ शोर लेस पीपीटी, और दूसरी चीज है द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेस, डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेस, या इसको कह लो डिस्टेंस फ्रॉम द सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेसिपिटेशन। ठीक है, इफ डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेस प्रेसिपिटेशन रिड्यूसेस। नॉर्थ ड्रिफ्ट कैसे पढ़ा यार, ये नाम कैसे पढ़ा ये तो पता नहीं, सही बताऊं तो। हाँ, अलग अलग बुक में देखोगे ना तो अलग अलग नाम मिलेंगे करंट्स के। जैसे इफ यू गो दिस पार्ट ओयोशियो करंट, ऊपर जाके कहोगे तो कहीं और उसको कमचटका करंट भी लिखा होगा। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम लिखे रहते हैं, ठीक है। कोल्ड, यहाँ पे इनफैक्ट एक और करंट भी है, दैट इज द ल्यूबिन करंट। पता नहीं वो दिखाया नहीं दिखाया इन्होंने, ल्यूबिन करंट, दिस ल्यूबिन करंट इज ऑल्सो वार्म करंट, ठीक है। क्या होगा बेसिकली यहाँ पे, जैसे ऊपर से आएगा ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ठीक है। इन इनिशियल स्टेज दिस ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो होगा, दिस इज द काउंटर इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। देख रहे हो, अब लिख बाद में लेना, अब देख तो लो। तो पपुआ न्यू गिनी आइलैंड्स एंड सम ऑफ द अदर आइलैंड्स एक्टिंग एज अ मेजर बैरियर टू इट, इट लीड्स टू द ब्रांच ऑफ। तो यहाँ पे जो आइलैंड्स हैं उनकी वजह से इट वुड टर्न, और यहाँ पे एक वन पार्ट और वन ब्रांच ऑफ दिस करंट जो है will come here, come here, come here, and due to which this as this it has to deflect to the left hand side, तो लेफ्ट करते करते जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ल्यूविन करंट। इसी की वजह से देयर है ल्यूविन केप। दिखाता, ठीक है, वो दिखाता, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज में डिफरेंट डिफरेंट वो दिखाया जाएगा, नॉट पॉसिबल कि सब कुछ एक में होगा। बताओ। इसमें एटलस में है नहीं यार, नहीं नहीं, अरे ठीक है, रुको रुको, अरे ठीक है, तुम लोग यार सुनो ना, तुम लोग यार क्या बंदे हो यार, अपने आप लगे हुए आपस में, रुक जाओ, वेट एक मिनट रुको। 5 and 6 are already explained, that 5 and 6 I am saying that if the area is close to, अरे रुको यार, if the area is close to coast there will be rainfall depending on whether the wind is onshore or offshore, ठीक है। and other fact that comes into account is the distance from the sea, as the distance from the sea increases precipitation decreases, ठीक है। तो distance from the sea is inversely proportional to precipitation, ठीक है। देखना एक बार दूसरे सोर्सेज में भी देखना, एटलस पे ही मत जाओ। सविंदर सिंह एंड ऑल विल आल्सो शो द नॉर्थ विंड ड्रिफ्ट वार्म करंट आल्सो, ठीक है। और एक ये ट्रेंड भी है कि एक डायरेक्शन में अगर कोल्ड होगा ना तो दूसरी डायरेक्शन में आपको वार्म करंट दिखाई देगा, ठीक है। जैसे यू विल सी, इधर से अगर वार्म करंट आ रहा है तो इधर यू विल सी द कोल्ड करंट, ठीक है। ठीक, चले आगे, आगे चले। वही है, वही है, वो है, वो नीचे आएगा अंटार्कटिक। तो साउथ अमेरिका, द टिप ऑफ साउथ अमेरिका, टिप ऑफ अफ्रीका, you will see the wind west wind drift just to the southern side, हाँ, that is the circumnavigating it,
ठीक है, जब करंट्स आएंगे ना तो यू विल कवर ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल। अभी जस्ट एक जनरल करंट का जो वो है वो पता कर लो। मूव करें, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज अंटार्कटिका। ठीक है, बना लो इसको, अंटार्कटिका को। देन वी विल स्टार्ट लोकेटिंग द प्लेसेस एंड माउंटेन रेंजेस एंड ऑल। तुम बाद में बोलना फिर, ठीक है, बोलो क्या बोलते हो। This is the continent of Antarctica, and the currents circumnavigating this continent would be cold currents, and they have a tendency to move towards the latitude that is lower compared to where they are originating. So, like we saw with Venezuela current, that was also a branch of. That was also a branch of a cold current. Lower latitude, it was a cold current termed Venezuela, and then it joined that equatorial current. On similar lines, when we see the obstruction in the case of this Australian continent, on the western coast, that current will be cold current. So how come there is a warm current that you are talking about, that northwest trip? That is what I am saying. I have told na ki Leuven current will also come on that at that place, and at that tip it would be renamed differently. Some say that it would be a Leuven current, some would say that it is a north drift current. देखो ये चीज बताई थी ना मैंने, ल्यूविन करंट है उसमें, ल्यूविन करंट नहीं है ना उसमें, डॉक्टर करंट। ठीक है, देखो अब तुम, ठीक है कोई नहीं यार, तुम देख लो इसको। सपोज ये इक्वेटर है, देख लो अब, जब एक बार तुम पूछ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कंसर्न हो, ठीक है। ये देखो एक बार, मैं वही कह रहा हूँ कि डिफरेंट सोर्सेज विल शो यू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। अब एक बार देख लो कि कहाँ से वार्म आया जो तुम यू आर आस्किंग, ठीक है। जो कोल्ड आया है वो तो कोल्ड इज कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, ये तो मानोगे, ठीक है। यू आर अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ कोल्ड आ गया एंड कोल्ड इज रीचिंग टू दिस प्लेस, दिस वन इज कोल्ड, ठीक है। तो इन व्हेन कोल्ड इज ट्रैवलिंग, दैट वार्म माइट आल्सो बी ट्रैवलिंग, और वार्म कहां से ट्रैवल करेगा, वार्म विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड टू हायर, मतलब लोअर मतलब वहां से कहीं आना चाहिए लोअर वार्म। जनरल कंडीशन में यही होगा ना, इफ कोल्ड इज मूविंग फ्रॉम हायर लैटिट्यूड टू लोअर लैटिट्यूड, तो वार्म भी कहीं आ रहा होगा, कहीं से चलता हुआ फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड टू हायर लैटिट्यूड। तो यहाँ का वार्म कहां से आया है, यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, ठीक है। These islands are a barrier to the current that is flowing in this equatorial current करके यहाँ पे जो है, ठीक है। एक ब्रांच इसकी has branch off and it comes here, that is this वाला East Australian warm current, ठीक है, ये तो है। और एक ब्रांच जो है इसकी यहाँ से निकल के आ रही है, that is deflecting to left hand side because it is a southern hemisphere. तो कोरलियस फोर्स विल डिफ्लेक्ट इट टू लेफ्ट करते करते वो यहाँ पे आ जाएगा, एंड यहाँ पे इट वुड बी, दैट इज यहाँ पे नेम दिया ल्यूविन, केप ल्यूविन। इसी को दे आर आल्सो सेइंग नॉर्थ ड्रिफ्ट। आई एम सेइंग नॉर्थ ड्रिफ्ट बिकॉज आई हैव यूज्ड द सेम टर्मिनोलॉजी एवर सिंस वी हैव बीन कवरिंग साउथ अमेरिका, अफ्रीका और उसके बाद ये, ठीक है। तो उस वजह से जो है इट इज नॉर्थ ड्रिफ्ट। कुछ और भी लिखा होगा, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी जो लिखा होगा ना,
वो इसी को ही लिखा होगा उन्होंने, वो उसको लिखा है, ठीक है। बट वेस्ट विंड ड्रिफ्ट का जो ब्रांच है वो भी यहीं से निकला है, मतलब उसका एक ब्रांच ही है ये, दैट इज द वार्म ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट। ठीक है, पता चला। वैसे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, दिस इज अ मैपिंग क्लास, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स वुड बी डिस्कस्ड वंस यू विल बी डूइंग द ओशनोग्राफी। ओवरऑल यू माइट हैव एन आइडिया कि भाई सिंपल क्या है। कोई नहीं, कोई कंफ्यूजन है वो करो पूरी, कोई वो तो करनी ही है हमें तुम्हारी दूर, ठीक है। मतलब ओवरऑल क्लियर ना। तुम लोग लड़ने भी तो लगते हो यार आपस में, रेफरी को इग्नोर करके, ठीक है। सो दिस इज अंटार्कटिका, बना लिया होगा अब तक तो। वी हैव अ ट्रांस अंटार्कटिक रेंज हेयर, we have a trans-Antarctic range that is dividing the entire Antarctica into two parts. This is trans-Antarctic range, दिख रही है वहां पे ट्रांस-अंटार्कटिक रेंज, ठीक है, ऊपर ही होगी ये तो। एंड दिस हैज डिवाइडेड द एंटायर अंटार्कटिका इनटू टू पार्ट्स। दिस पार्ट इज वेस्टर्न अंटार्कटिका and this one is known as Eastern Antarctica. ठीक है, Western Antarctica is also called as lesser because you can see the size. They are calling it as lesser Antarctica, calling the eastern one as the greater Antarctica. ठीक है, दिस इज द वेस्टर्न वन, दिस इज द ईस्टर्न वन। एक और चीज बतानी थी, यहां पे वी हैव अ साउथ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका। यहां पे वी हैव एन अफ्रीका, और यहां पे वी हैव ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो यू हैव एन आइडिया कि कहां पे खड़े हैं हम। ठीक है, दिस इज ट्रांस अंटार्कटिक रेंज, दिस इज वेस्टर्न अंटार्कटिका, दिस इज ईस्टर्न अंटार्कटिका। एंड geographers say that eastern Antarctica was first formed. Eastern Antarctica was formed first, and then it was followed by the West Antarctica, that is the lesser Antarctica. Eastern Antarctica के बारे में एक और चीज ये है कि that Eastern Antarctica is igneous rocks, is rich in igneous rocks because it is formed due to the volcanic eruptions. ठीक है, Eastern Antarctica is formed due to volcanic eruptions, while the Western Antarctica is known for sedimentary rocks. क्या बोल रहे हो बताओ? है वेस्ट अंटार्कटिका, मैंने लिखा है कि ईस्ट अंटार्कटिका वॉज फॉर्म्ड फर्स्ट। क्या हुआ, वो नहीं लिखना था, मिटा दूं? ईस्टर्न अंटार्कटिका वॉज फॉर्म्ड फर्स्ट एंड देन द वेस्टर्न अंटार्कटिका फॉर्म्ड। ठीक है, वहां जगह नहीं थी इसलिए उधर लिखा है। ईस्टर्न अंटार्कटिका इज रिच इन इग्नियस रॉक्स, ठीक है, बिकॉज it is made up from the volcanic eruptions and this is rich in sedimentary rocks. तो यहां की तरफ देखोगे तो you will see this part enriched in copper, gold, ठीक है, and many other minerals. This is rich in sedimentary rocks means petroleum, ठीक है, oil reserves and all, ठीक है, तो this is rich in petroleum reserves. ओके, एक चीज ये हो गई। Then you will see यहां पे है, और यहां पे भी दिस इज रॉन आइस शेल्फ, दिस इज रॉस आइस शेल्फ, ठीक है। यहां पे यू विल सी थोड़ा सा इसके साइड में देयर इज अनदर शेल्फ दैट इज लार्सन,
Larsen ice shelf. We also have this Amere ice shelf. So this shelf as a continental shelf. बताता हूँ इसके बारे में भी, ठीक है, अभी देख लो ये सब होंगे वहां पे। रॉस आइस शेल्फ होगा, रॉन आइस शेल्फ, लार्सन आइस शेल्फ, एमेरे आइस शेल्फ, दिख रहा है? देखो जहां जहां लोकेट किए हैं, मिले। रॉस सी भी होगा इसके नीचे, यू विल सी द रॉस सी, you will see the Weddell Sea here. This part is Weddell Sea. मिल रहे हैं ये सब? कोई है जिसे नहीं मिल रहा हो? कहाँ पे लिख दिया ये? वेस्ट अंटार्कटिका। लेस अंटार्कटिका इज ऑल्सो द वेस्ट अंटार्कटिका ना। ठीक है, रॉन आइस शेल्फ, रॉस आइस शेल्फ, लार्सन आइस शेल्फ एंड एमेरे आइस शेल्फ. Basically what these ice shelves are, these are the parts that are attached to the Antarctica. During the winters what happens, the temperature is, you know, that is always below -°C. ठीक है, तो what happens, this part of the water freezes and this becomes part of the land, so that is why it is called as ice shelf. ठीक है, these are the ice shelves and it has been named differently, Ross ice, Ron and this Amere and Larsen. But when the summers arrives, this freezed part or the ice that is deposited here, that melts, ठीक है, and it ultimately turns into Ross Sea and the Weddell Sea. समझ में आ गया? ठीक है, तो अंटार्कटिका के ऊपर नॉर्मली जनरली अंटार्कटिका हैज अ थिकनेस ऑफ अराउंड 2.5 किलोमीटर थिकनेस ऑफ आइस. समझ रहे हो, इतनी थिकनेस रहेगी स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर्स. देयर इज अ थिकनेस ऑफ अराउंड 2.5 किलोमीटर ऑन द सरफेस ऑफ अंटार्कटिका. पता चल गया? एंड दिस प्लेस, दिस पार्ट, ये जो है सारा, दिस इज नोन एज अंटार्कटिक पेनिनसुला. ओके, यहाँ पे वी हैव अनदर माउंटेन रेंज, यहाँ पे वी हैव अनदर माउंटेन रेंज होगा, दैट इज एल्सवर्थ. और यहाँ पे वी हैव अनदर रेंज दैट इज प्रिंस चार्ल्स. दिख रहे हैं? प्रिंस चार्ल्स एंड एल्सवर्थ. मिला? प्रिंस चार्ल्स, एल्सवर्थ माउंट्स, प्रिंस चार्ल्स माउंट जस्ट टू द एमेरे आइस शेल्फ के पास. प्रिंस चार्ल्स माउंट, एल्सवर्थ माउंट्स, देखो वेस्ट में ईस्ट में अलग अलग है. मिला? मिल गया ना? एंड दिस प्लेस, यहां वाला ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ग्राहम लैंड. टॉप वाला पार्ट है जो, दिस इज नोन एज ग्राहम लैंड. एंड अर्जेंटीना एंड ब्रिटेन, दे आर फाइटिंग ओवर इट. Both of them are claiming that this part belongs to them.
ठीक है, देयर इज अ टसल गोइंग ऑन बिटवीन द अर्जेंटीना एंड ब्रिटेन टू क्लेम दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ग्राहम लैंड। ठीक है, दिख रहा है उसमें, शायद ग्राहम लैंड नहीं होगा या है? ठीक है तो अच्छी बात है। एंड वी ऑल्सो हैव हियर ड्रेक पैसेज, Drake passage, this is Drake passage। ठीक है, दिख रही हैं चीजें? The highest peak here is this one, Ellsworth में we have Vinson Massif। Peak is Vinson Massif। दिख रही है? वो तो दिख रही होगी, वहां पे लिखा होगा अगर तो, माउंट विंसन मैसिव। Sir, in summer these shelf are basically Gulf। You cannot say that they are Gulf, sea ही है ये, because Gulf must have a narrow inlet। इनलेट तो इनका नैरो नहीं बनेगा। ठीक है, डायग्राम में आई माइट हैव शोन कि भाई ऐसा था, बट इन इफ यू सी इन रियलिटी द इनलेट्स आर नॉट वेरी नैरो, इनलेट्स आर वेरी वाइड, स्पेशली दिस रॉस सी हो गया या फिर वेडल सी हो गया, so we cannot call them Gulf। ठीक है, the concept was कि that this part of the water that is close to this area, as this is attached to the land, so continentality factor comes here। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स के साथ क्या होता है, लैंड्स के साथ, लैंड्स हीट्स अप फास्टर एंड कूल्स अप फास्टर, बिकॉज द लैंड वाला पार्ट है तो लैंड कूल्स अप फास्टर, सो वाटर दैट इज इन द विसिनिटी ऑफ द लैंड इट ऑल्सो कूल्स फास्टर। तो कूल फास्टर तो मीन्स इट विल टर्न इनटू ice, so this water will turn into ice and these are called as ice shelves। in summers mein the same ice will melt and this area will turn into Ross ice and this will into Weddell Sea। ठीक है, यही है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, दोबारा से बार रिपीट कर दूंगा। एल्सवर्थ माउंटेन एंड यस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है जो दैट Alfred Wegener, that explains a lot about how the continents have been drifted। So in that theory also it has been explained that Antarctica was once the part of India and Australia, because the rocks of India and Australia are very much similar to the rocks that we have found in Antarctica। And few thousand years ago also the Antarctica was having a dense vegetation, but over the period of time, due to drifting apart, due to climate change and some other factors, this has turned into a polar desert। ठीक है, यही है इसका। यस प्रिंस, ठीक है, तो इतना ही कुछ है। बाकी यू नो रिसर्च स्टेशंस भी हैं, मैनी कंट्रीज हैव सेट अप देयर रिसर्च स्टेशंस इन अंटार्कटिका, इंडिया के भी हैं। कौन कौन से हैं? यस, दक्षिण गंगोत्री इज नाउ नो मोर ऑपरेशनल नाउ। ठीक है, यहाँ पे है दक्षिण गंगोत्री, यहाँ पे कहीं है दक्षिण गंगोत्री, दिस इज दक्षिण गंगोत्री, दिस इज नॉन ऑपरेशनल नाउ। यहीं पे वी हैव अ मैत्री, और यहाँ पे वी हैव अ भारती हियर समवेयर अमेरिका के पास, वी हैव अ भारती। ठीक है, दीज आर द रिसर्च स्टेशंस। ठीक है, यहाँ पे एक रशिया का बड़ा फेमस हुआ, दैट इज वॉस्टॉक रिसर्च स्टेशन ऑफ रशिया। ठीक है, रिसर्च स्टेशन का यूज क्या है वहां पे वैसे? एक्सप्लोरिंग द न्यू रिसोर्सेज। कहाँ ये लोग रिसोर्स एक्सप्लोर करने दे रहे हैं? तब ये जो प्रिंस चार्ल्स वार्ल्स नाम लिखे हुए हैं, ये लोग पहले से ही वहां पे बना के बैठे हुए हैं यार। प्रिंस चार्ल्स कौन है? ये ब्रिटेन वाले ही हैं। बट जस्ट
एक्सप्लोर तो कुछ भी नहीं करने दे रहे बिकॉज हाँ एक्सट्रैक्शन तो ये है कि डिपेंड्स ऑन द बायलैटरल टाइज, इफ किसी के साथ ऐसा कोलैबोरेशन हो जाए टाइप ब्रिटेन या कोई पावरफुल कंट्री. द मेन आइडिया बिहाइंड द सेटिंग अप द रिसर्च स्टेशन इज सो दैट वी कैन predict the climate change, and the same study could be used to preserve and conserve the glaciers that have been melting in the Himalayas. हाँ मिटिगेट कर सकें उसके इफेक्ट्स को. दैट्स इट, उतना ही था. बाकी अब देखो अगर किसी के साथ कुछ कोलैबोरेशन हो जाए तो दे विल हेल्प इंडिया कि हाँ चलो एक्सट्रैक्ट कर, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया डज नॉट इवन हैव दैट काइंड ऑफ अ टेक्नोलॉजी दैट कुड बी यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द रिसोर्सेज फ्रॉम दीज प्लेसेस. ठीक है, पहले तो करने नहीं देगा कोई. एंड देयर वाज अ आर्कटिक काउंसिल आल्सो. आर्कटिक काउंसिल बनाया था एक बाय मेनी कंट्रीज. ठीक है, अंडर ओटावा डिक्लेरेशन. Under Ottawa Declaration, they have made the Arctic Council, in which all member countries have decided that this place could be used only for the research and for the purposes that would be beneficial for the humanity. ठीक है, उसको सस्टेनेबल तरीके से यूज करेंगे, would not pollute and all. ठीक है, India is also has an observer status in that council. Okay, तो इतना ये एक बार रिपीट कर दूं. बना लिया ये ऑनलाइन बनाया आप लोगों ने? तो ठीक है, रिपीटिंग इट. फर्स्ट इज दिस इज अंटार्कटिका, and there is a mountain range that is trans-Antarctic mountain range that is dividing the entire Antarctica into two parts. One is the western part, other is the eastern part. Western part is known as Western Antarctica or also called as Lesser Antarctica. The eastern part is called as Greater Antarctica. You can see also see because it is bigger in size, so that's why they are calling it Greater Antarctica. Greater Antarctica was formed first and this was formed later. ठीक है, now this is Antarctic Peninsula. This is a small piece of land, the tail like वो है जो structure. This is called as Graham Land, and there is a conflict between Argentina and Britain. Both of them are claiming the ownership over that particular piece of land. We have ice shelves here. Ice shelves मैं बता चुका हूँ. We have Ron ice shelf, we have Larsen ice shelf, we have Amere ice shelf, and the Ross ice shelf, and these ice shelves melts during the month of summers and these shelves turns into the sea. ठीक है, we have Ellsworth mounts here and the Prince Charles mount here. Ellsworth mount is having a peak that is Vinson Massif, which is also the highest, and Prince Charles is also यहाँ पे ये जाना जाता है for igneous minerals. This is consist of igneous rocks, so this is known for some metallic minerals like copper, gold. जो इधर वाला पार्ट है that is rich in sedimentary, so we are obtaining the petroleum reserves from this portion. ठीक है, बाकी तो कुछ है नहीं. We have South America here, Africa here, Australia here. ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं ना. ठीक है, I think we have done all these. फाइन, मूव करें आगे. और टेम्परेचर जो है जनरली यहाँ रहेगा -45 to 65. किस में ज्यादा रहेगा, अंटार्कटिका में और आर्कटिक में टेम्परेचर? अंटार्कटिका वुड हैव अ लेस टेम्परेचर, इट वुड बी -45 to -65, और आर्कटिक में रहेगा -15 to -25 या -30 ऐसा कुछ आता रहता है, बिकॉज ऑफ द कॉन्टिनेंटलिटी फैक्टर. लैंड इज मोर हेयर. ठीक है, लैंड इज मोर हेयर and in Arctic the water is more. So same factor है वही कि land heats up faster, cools up faster. So because the major portion of this is known from land, that's why it's also cools up faster. ठीक है, टेम्परेचर भी जो है ज्यादा डाउन यहाँ पे रहेगा -45 -65. आर्कटिक्स में we have -15 to -25 के आसपास. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आर्कटिक को.
ठीक है, रफ मैप भी बना रहा हूँ मैं भी. दिस इज ग्रीनलैंड. ग्रीनलैंड के इधर वी हैव दिस कनाडा वाला पार्ट, वी हैव अलास्का. यहाँ पे भी आर रशिया. ठीक है, रशिया के बाद वी हैव स्कैंडिनेवियन कंट्रीज दैट एग्जिस्ट बिटवीन द ग्रीनलैंड एंड ये. ठीक है, वी हैव अ बेरिंग स्ट्रेट हेयर. We have this Chukchu Sea. रशिया है, रशिया के इधर भी हैव अ कारा सी. स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं. उसके बाद इधर वी हैव नॉर्वेजियन सी एंड दिस ग्रीनलैंड सी. यहाँ पे ऑल्सो वी हैव अ हाँ, वो रशिया में कर लेंगे जब रशिया करेंगे. जस्ट शो करना है एक बार कि कैसा सराउंडेड है ये. ठीक है, वी हैव अ बेफोर्ट सी हियर और लैब्राडोर सी. ठीक है, दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि भाई कौन सी कंट्री कहाँ लाई कर रही है एंड ऑल, बिकॉज वी हैव टेकन द एरियल व्यू. ठीक है, दिस इज द एरियल व्यू, द टॉप व्यू ऑफ दिस आर्कटिक. ठीक है, आर्कटिक इज ऑल्सो वेरी रिच इन रिजर्व्स. मिनरल रिजर्व यहाँ पे भी बहुत हैं. and that is why every country is now eyeing towards the, every country means those countries that are close to the Arctic. ठीक है, they are also eyeing to explore to extract the minerals of this particular zone. mineral rich है बहुत. इसकी बात करूं, जैसे मैं इधर से स्टार्ट करूं तो लाइक कारा सी is within the control of Russia, but you will see the lot of copper here plus ferro manganese nodules. ठीक है, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, फेरोमैग्नेटिक नोड्यूल्स एंड ऑल. स्कैंडिनेवियन कंट्री है. स्कैंडिनेवियन कंट्री, दिस इज ऑल्सो गोल्ड वगैरह के लिए इज फेमस. दिस पार्ट गोल्ड. ग्रीनलैंड वाला पार्ट इज ऑल्सो मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पार्ट दैट आर ऑफ शोर. ठीक है, मतलब ग्रीनलैंड की बात नहीं कर रहा हूँ. द पार्ट दैट इज विद इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ दीज कंट्रीज, दैट कम्स विद इन देयर जुरिडिक्शन. यहाँ पे वी आर गेटिंग पेट्रोल प्लस 20% ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स, और we used to have one word for them, critical minerals. 20% of rare earth minerals of the world exist at this place, that is within the control of this Denmark. Greenland है जो. ठीक है, Canada also have a one famous mines here in Arctic, that is Diewerk mines, which is known for the huge reserves of diamond. अलास्का में भी वी हैव रिजर्व्स ऑफ पेट्रोल, और इसके अलावा बिकॉज ऑफ अलास्का यूएस इज एक्सपोर्टिंग अ लॉट ऑफ जिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड. यहाँ पे एक रेड डॉग माइंस करके है, द रेड डॉग माइंस, विच इज
known for zinc production. ठीक है, बाकी you know a lot of minerals are there, still countries are exploring, so it is turning out to be epicenter for minerals. All of these wanted to have a sovereignty over their areas. चलें आगे, हो गया, रिपीट कर दो इसको एक बार. दिस इज ग्रीनलैंड. इट हैज on the offshore of Greenland in the Arctics, they have a reserves of petrol and 20% of the rare earth minerals. That is, we also used to call them as critical minerals, because these are the minerals that have been revolutionized the renewable energy technology. ठीक है, lot of efforts have been done by all countries कि हमारे पास ज़्यादा ज़्यादा rare earth minerals हो, like lithium, that is also rare earth mineral that is used in the batteries. तो EVs के लिए, solar technologies के लिए, these rare earth minerals are future for the entire world. Now this is a Labrador Sea, this is a Beaufort Sea. Canada has a famous mines, that is Dievac mines, ठीक है, famous for diamonds. Alaska also has one Red Dog mines for zinc. Bering Strait is also the strait that connects Russia and this America. Chukchi Sea is also famous for reserves. Kara Sea has copper as well as ferromanganese nodules, and you know Scandinavian countries have some deposits of gold here. ठीक है, बाकी ये सब तो वो है ही. डन. ठीक है, बाकी तो क्लाइमेट चेंज का इशू है, यू नो, काउंसिल्स हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, वो सब ठीक है, वो तो करना नहीं हमको. एक बार ये साउथ ईस्ट वाला पार्ट देख लेते हैं. ठीक है, तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में कौन कौन सी आएंगी? थाईलैंड आ गया, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, और बताओ, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनेई. हो गए क्या सारे? 2 3 4 5 6 7 8 9 10. नहीं यार, 10 ही हुए, एक रह गया कोई. म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनेई. हाँ, तिमोर, ईस्ट तिमोर करके रह गया ना. ठीक है, देयर आर 11 कंट्रीज इन साउथ ईस्ट एशिया. ठीक है, आई एम ड्रॉइंग अ रफ मैप ऑफ दैट पर्टिकुलर लोकेशन.
यहाँ पे भी है। ठीक है, हमें बहुत सारे आइलैंड्स हैं जिनके नाम हमें भी नहीं पता, मैप वालों को भी नहीं पता, तो छोड़ दिए वो। ठीक है, यहाँ पे भी है फिलीपींस वाला पार्ट। यस यस प्रिंस, बनाया, बना लो फिर चलो। चले, ठीक है भैया, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर। रफ बना लो, बहुत ज़्यादा प्रिसाइजनेस करने की जरूरत नहीं है, भाई लगा हुआ है पूरी कलाकारी दिखाने में। ठीक है, रफ बना लो सो दैट यू हैव एन आइडिया। ठीक है, दिस इज विच वन, म्यांमार, ये और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी वाले एरिया से आता है कि विच इज द स्ट्रेट बिटवीन दीज टू विच ऑल आर टचिंग वन अनदर, स्पेशली लाओस, कंबोडिया एंड वियतनाम वाला काफी कंफ्यूजिंग रहता है। ठीक है, दिस इज थाईलैंड, दिस इज थाईलैंड, दिस इज लाओस, ये कंबोडिया, दिस इज वियतनाम। ठीक है, दिस इज थाईलैंड, लाओस हो गया। वी हैव दिस पार्ट, दिस इज गल्फ ऑफ मर्तबा। ठीक है, हेयर वी हैव अ अंडमान सी। ठीक है, और ये थाईलैंड जो है बिल्कुल पतला सा, देखो माइट भी सही से दिखाई भी नहीं दे रहा होगा कि दैट इट इज नॉट टचिंग द दिस म्यांमार। यहाँ पे एक बहुत ही नैरो एरिया है। दिस इज मलेशिया, दिस इज, ये है मलेशिया। दिस इज द स्मॉल डॉट हेयर, दिस इज सिंगापुर। सिंगापुर इज इवन लेस देन दिल्ली इन एरिया। ठीक है, उससे भी छोटा है। नाउ, अरे क्या हो गया, ठीक, दिस इज सुमात्रा आइलैंड्स। मिल रहा है ना ये सब, सुमात्रा आइलैंड्स दैट आर अ पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। दिस इज जावा, जावा आइलैंड, द बाली, द फेमस वन। बाली जाते हैं बहुत लोग।
ठीक है, बाली के बारे में तो पता ही होगा। जावा, दिस इज जावा सी, दिस इज जावा सी, ठीक है। ये है दिस इज एन आइलैंड दैट इज नोन एज बोर्नियो, ठीक है, इसको बोलेंगे बोर्नियो, बोर्नियो आइलैंड है ये, बट इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये पहला पार्ट ऐसे, दिस इज द येलो वन, को येलो में वो कर देता हूं मैं, और यहाँ पे एक छोटा सा एक और कंट्री भी, दिस येलो पार्ट इज विद मलेशिया, ठीक है, एंड दिस पार्ट इज विद इंडोनेशिया, ठीक दिख रहा है। दिस स्मॉल पार्ट, दिस वन, दिस इज ब्रूनेई, बहुत छोटी कंट्री है। जस्ट टू द ईस्ट ऑफ इट, दिस वन, दिस इज सुलावेसी, अगेन एन आइलैंड पार्ट विद इन द सोवरेन कंट्रोल ऑफ इंडोनेशिया, ठीक है। जस्ट टू द नॉर्थ ऑफ दिस सुलावेसी वी हैव फिलीपींस, ये पूरा फिलीपींस है, बट दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज नॉर्दर्न आइलैंड एंड southern island, and this northern and southern island is known as, this is Luzon and this is Mindanao, ठीक है, and this entire part is south, ये वाला हो गया जो, this is यहाँ पे साउथ चाइना सी, ठीक है। This is the Malacca Strait, this one, this is the Malacca Strait, the longest strait of the world, and Malacca Strait facilitates the flow of around 25% of the oil of the world through this region, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, कंबोडिया वी हैव लोकेटेड, दिस देयर इज अनदर गल्फ, दैट इज गल्फ ऑफ थाईलैंड, यहाँ पे वी हैव अ गल्फ ऑफ थाईलैंड, ठीक है। और इसमें भी अगर मैं बताऊं आपको, इसको मैं यहां ले जा रहा हूं, ठीक है, बोर्नियो वाला, दिस इज कॉल्ड एज सरावक and this is called as Sabha, हाँ, गल्फ ऑफ टोंगिन भी है, वी हैव अ गल्फ ऑफ टोंगिन हियर, गल्फ ऑफ टोंगिन, एंड यहाँ पे वी हैव अ हेनान स्ट्रेट, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, ठीक है, बस आपने बताया तो। एंड वी हैव सम आइलैंड्स हियर, यहाँ पे स्प्रैटली आइलैंड्स बोलते हैं इनको, स्प्रैटली आइलैंड्स, these are uninhabited islands and all the countries, almost Taiwan ho, all these are fighting over the claim over these islands with China, ठीक है। ये पता लग रहा है अभी कहाँ कहाँ है, दूसरा बनाना पड़ेगा, बोर्नियो वाला पार्ट हो जाता है। बोर्नियो इज एन आइलैंड, ठीक है, और बोर्नियो आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, वन पार्ट इज विद इंडोनेशिया, दिस वाला इधर वाला, एंड दिस येलो लाइंस, दिस पार्ट इज विद मलेशिया,
एंड द थर्ड स्मॉल डॉट लाइक ये जो है आपका दैट इज विद ब्रुनई। ठीक है, मलेशिया ने भी उसको डिवाइड किया है दो उसमें, वन इज सरावाक, अदर इज सबाहा। फिलीपींस ही है ना, दिस इज फिलीपींस डिवाइडेड इनटू टू आइलैंड्स, नॉर्थ आइलैंड एंड दिस, ये फिलीपींस ही तो है। नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड, नॉर्दर्न आइलैंड इज नोन एज लुजन, साउदर्न आइलैंड इज नोन एज मिंडानो। टिमोर, टिमोर बताया ना यहाँ पे, जस्ट ऑस्ट्रेलिया थी जहां पे, ऑस्ट्रेलिया के वी हैव डन द टिमोर सी, जस्ट अबव द टिमोर सी देयर इज अ टिमोर, दैट इज यहाँ पे नीचे वी हैव अ टिमोर सी, और फिर नीचे शुरू हो जाएगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। ये इधर दिस इज, यही तो है, इसी को मैं उधर लेके गया हूं जस्ट टू मेक इट मोर क्लियर कि दिस स्मॉल पार्ट इज ब्रूनई, ये इसमें नहीं है, वो वहां से आया यहाँ पे, दिस इज ब्रूनई। ठीक है, दिस एंटायर पार्ट इज विद मलेशिया, ये वाला, और मलेशिया भी इसको इज कॉलिंग विद टू डिफरेंट नेम्स, दिस इज सरावाक, दिस इज सबा, एंड दिस पोर्शन इज विद इंडोनेशिया। सारे को मिला के भी कहते हैं द बोर्नियो आइलैंड। ठीक है, सारे को कहते हैं बोर्नियो आइलैंड, बट इट इज अंडर डिफरेंट कंट्रोल ऑफ इंडोनेशिया एज वेल एज मलेशिया। चलें आगे चलें, पता लग गया। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स लोकेट कर लो इनके। ऑल्दो द बिगेस्ट टाउन ऑफ म्यांमार इज रंगून, यहाँ पे कहीं है रंगून, बट इट्स कैपिटल इज, यहाँ पे कहीं है इसकी कैपिटल, दैट इज नई पाई, क्या है, टाओ। ठीक है, नई पे टाओ इज द कैपिटल, कैपिटल को येलो में कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज, यहां पे आ जाओ, थाईलैंड, बैंकॉक, यहां पे कहीं होगा बैंकॉक, दिख रहा है। व्हाट इज द जेड शेप आइलैंड, कहाँ है जेड शेप आइलैंड, ये जेड है क्या, यहाँ जेड सा लग रहा है। ठीक है, सुलावेसी, दिस इज सुलावेसी, यस, विद इन द कंट्रोल ऑफ इंडोनेशिया, इंडोनेशिया ही है यहाँ का मेन प्लेयर। ठीक है, दिस इज बैंकॉक, जो गल्फ ऑफ आइलैंड, थाईलैंड का बैंकॉक। कैन यू लोकेट दिस ऑन अ मैप, दिख रहा है, मिल रहा है। ठीक है, here we have a Phnom Penh in Cambodia, मिल रहा है। This is Laos, we have a capital here, that is Vientiane, मिल रहा है। लिख नहीं रहा हूं क्योंकि, लिख दूं क्या, फिर ज्यादा वो हो जाएगा तो तुम लोगों को फिर दिखा समझने में मुश्किल होगी। हाँ, मैप में देख लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ लाइक वी हैव डन कि भाई ये दिस इज फेमस फॉर पोर्ट, दिस इज फेमस फॉर सर्विस सेक्टर, ऐसा कुछ नहीं है इन कंट्रीज में, तो वी डोंट हैव टू डिस्कस ऑल दीज सिटीज इन डिटेल एंड ऑल, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि कहाँ है ये, क्योंकि समटाइम्स दिस हैज बीन आस्क्ड इन द यूपीएससी प्रीवियसली कि यू हैव टू अरेंज इट इन अ डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, ऐसा कुछ आ चुका है। ठीक है, लास्ट वन इज वियतनाम, देयर इज आल्सो द कैपिटल दैट इज हनोई, हनोई भी यहाँ पे है। ठीक है, मलेशिया हैज अ कैपिटल कुआलालंपुर। ठीक है, सिंगापुर का कैपिटल क्या है, सिंगापुर का सिंगापुरी है, यस।
ठीक है, हेयर वी हैव अ कालीमेंटन, कालीमंटन, ठीक है। और यहां पे सुमात्रा आइलैंड्स पे वी हैव अ प्लेस दैट इज बंदर एस, this Bandar Ace was an epicenter of an earthquake in the year 2004, and this earthquake has brought a massive tsunami which has reached up to the coast of Africa. याद है इंडिया में भी 2004 में, ठीक है, there was a tsunami. This was the epicenter of that tsunami. So in Sumatra Islands पे. Spratly is an uninhabited island. All countries are disputing, claiming that कि ये मेरा है, मेरा वो टाइप बोल के, ठीक है ना, साउथ चाइना सी, although the major player here is the China, but still they are also claiming over it. ठीक है, ये हो गया. फिलीपींस वी हैव अ मनीला, ठीक है, मनीला हेयर, सुलावेसी है. बिटवीन इंडोनेशिया एंड सुलावेसी वी हैव अ मकासेर स्ट्रेट, Makassar Strait. Above this we have a Celebes Sea, and above Celebes Sea we have a Sula Sea. ठीक है, बाकी ये सब मकासर स्टेट वगैरह तो इंपॉर्टेंट नहीं है. मलाक्का स्टेट का आपको पता होना चाहिए, बाली का पता होना चाहिए, जावा, सुमात्रा, टिमोर की लोकेशन का आइडिया होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया इज इन विच डायरेक्शन ये पता होना चाहिए, एंड यू मस्ट नो के ये थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम किस तरीके से हैं एंड वेयर देयर कैपिटल्स आर. क्या चलूं, आगे चलूं, एक बार बताना है दोबारा. Philippines is divided into two islands. Two islands मतलब two parts. Although entire Philippines is an archipelago, ठीक है, consisting of many islands. One zone is North Island, other is South Island. Northern zone is known as Luzon, and southern zone is known as Mindanao. ठीक है, मलेशिया की ये रही ना, मलेशिया की टेरिटरी थाईलैंड के बॉटम में, ये पार्ट जो है मलेशिया का है, एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो मलेशिया. और कुछ आइलैंड्स हैं यहाँ वहां, वो भी हैं. ओशन के अंदर क्या, हाँ हाँ, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, वो इंडोनेशिया के भी हैं, मलेशिया के भी हैं, उनको छोड़ दो, वो सब ऐसे ही है. ठीक है, इंडिया के पास भी 1000 आइलैंड्स हैं, यू नो, मोर देन 1000 आइलैंड्स कम विद इन द, हमें भी नहीं पता उनके नाम का, वो सब हमें जरूरत ही नहीं है. यहाँ पे हैं कुछ छोटे मोटे आइलैंड, सिंगापुर हैज आल्सो कंट्रोल ओवर इट, मलेशिया का भी है, इंडोनेशिया का भी है. ठीक है, तो चलता रहेगा ये सब. तो दिस इज म्यांमार, दिस इज थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, गल्फ ऑफ टोंगिन, दिस इज हेनान स्ट्रेट, दिस इज साउथ चाइना सी. ठीक है, मलेशिया के यहाँ पे वी हैव सिंगापुर, बिटवीन सिंगापुर एंड दिस सुमात्रा, दिस इज मलाक्का स्ट्रेट, द लॉन्गेस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड, एंड वी हैव जावा सी हियर, वी हैव बाली. This is Borneo Island, which has been divided into 3 parts. One part is under the control of Indonesia. The famous town here is Kalimantan. I think it's also the capital of Indonesia. Jakarta. But I think change हुआ है. नुसरत change हुआ है, नुसरत करके हुआ है. ठीक है. This part is within the Malaysia, and this small part is Brunei. Brunei का भी capital है like, क्या है उसका कैपिटल, भगवान सेरी कुछ करके है, बंदर सेरी बेगवान करके. यस यस, ब्रुनई कैपिटल इज बंदर सेरी बेगवान. ठीक है, वो भी यहीं पे है. इंडोनेशिया, सुलावेसी, दिस इज आल्सो आइलैंड इन अ शेप ऑफ ऑक्टोपस. ठीक है, दिस कम्स विद इन द कंट्रोल ऑफ इंडोनेशिया. टिमोर, इरियान जया, इरियान जया इज आल्सो द पार्ट ऑफ इंडोनेशिया. पपुआ न्यू गिनी से जो ईस्ट में, वेस्ट में था, ये वही है. ठीक है, चलूं आगे, आपस में बातें में लगे हुए, बता रहे हैं चलूं नहीं चलूं. ठीक है, अब मेन चीज है वो देख लो एक बार.
ठीक है, एक तो सबसे पहले वी हैव अराकन योमा विच इज एन एक्सटेंशन ऑफ, हाँ हिमालयस का ही एक्सटेंशन है। ठीक है, दिस इज अ माउंटेन रेंज अराकन योमा विच इज एन एक्सटेंशन ऑफ हिमालयास। इट इज इन म्यांमार। ठीक है, इस एरिया में ज्यादा माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड ऑल तो है नहीं, ऑल दीज आइलैंड्स आर बीन मेड अप ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस एंड ऑल। ठीक है, नेक्स्ट इज है आपका प्लेट्यू। वी हैव अ फेमस प्लेट्यू हेयर, दैट इज यहाँ पे वी हैव अ शान प्लेट्यू। ये सब शायद ना हो और एटलस में है। ठीक है, दिस इज शान प्लेट्यू। And we have another important plateau here in Thailand, that is Khorat Plateau. ठीक है, this is Khorat Plateau. ठीक है, बाकी कहीं कुछ है नहीं ज़्यादा, source of minerals and all of their economy is depending completely upon the tourism. ठीक है, और जो थोड़ा बहुत कर रहे हैं they are engaged in service sector. अब एक रिवर देखो, 2-3 important rivers are there. रिवर इरावडी। ठीक है, दिस इज रिवर इरावडी विच इज ओरिजिनेटिंग समवेयर इन तिब्बत। ये यहाँ पे तिब्बत है ऐसा। ठीक है, दिस इज तिब्बत originating here and it ultimately drains into the Andaman Sea. It is draining in Andaman Sea. And Irrawaddy is also known for Irrawaddy dolphins. Irrawaddy is also known for Irrawaddy dolphins. ठीक है, we also have another river here, that is Salween. River Salween. ठीक है, it is cutting across the Shan Plateau and it drains into the here, that is Gulf of Martaba. ठीक है, चलूं आगे चलूं। ठीक है, नाउ देर इज अनदर रिवर दैट इज कमिंग फ्रॉम तिब्बत और यूनान प्रोविंस इन तिब्बत इन चाइना। ठीक है, वो ऐसा आ रही है, फर्स्ट इट विल एंटर इनटू लाओस। ठीक है, लाओस में एंटर करेगा एंड इट विल जस्ट कट म्यांमार on the borders, then enter into Cambodia and finally enter into Vietnam and drains into the South China Sea. ठीक है, यहां it will form the Mekong Delta. Mekong Delta, that is the second largest delta of the world. Second largest delta of वर्ल्ड। द फर्स्ट लार्जेस्ट इज गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, वो तो पता ही है। ठीक है, दिस प्लेट्यू इज रिच, दिस वन खोराट वाला, दिस इज रिच इन आयरन प्लस बॉक्साइट एंड दिस इज रिच इन आयरन ओनली। ठीक है, यहां पे गल्फ ऑफ थाईलैंड है, वो तो बता ही दिया था पीछे। हाँ, here we have a bauxite and iron, here we have iron. ठीक है, in terms of cultivation agriculture की बात करूं तो mainly they are producing rice, all of them. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसके बारे में। rice, cotton and sugar cane majorly being produced here, जिसमें से 30% is gone for 30% goes to rice. 30% of the land is being used for the cultivation of rice, and एक special type of technique है that is being used here for rice cultivation, that is SSI,
सस्टेनेबल सिस्टमिक इंटेंसिफिकेशन ऑफ राइस करके। मेकोंग डेल्टाज रिवर नेम, क्या रिवर नेम? Mekong river is forming Mekong delta. हाँ तो मेकोंग डेल्टा ही बोलते हैं उसे। हाँ, मेकोंग इज द नेम ऑफ रिवर, ठीक है, मेकोंग इज द नेम ऑफ रिवर, ठीक है, वही है सस्टेनेबल सिस्टम इंटेंसिफिकेशन ऑफ राइस विच हैज इंक्रीज देयर राइस यील्ड बाय 30%, ठीक है। ऑल्दो दिस टेक्निक वाज डेवलप्ड इन जापान, सम सेज इन फ्रांस, ठीक है, एंड दे हैव बीन डिप्लॉइंग यूजिंग इट पर्टिकुलरली in their area so as to increase their yield. Yes, Dhruv, spices are also there, but the majority of the land is being used for rice. Even India also imports rice from Myanmar, Thailand वगैरह, यहाँ से आता है बहुत राइस वाला पार्ट, ठीक है। इतना ही है इसमें, ज़्यादा कुछ है नहीं। These all parts are economies. Singapore, you know, one of the fastest economy that is shifting itself, that has completely shifted itself to the service sector, ठीक है। बाकी तो कुछ इसमें इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से वैसा कुछ है नहीं। पॉपुलेशन तो आप जानते हो कि क्या है इसका, पॉपुलेशन इज हाई इन दीज एरियाज बिकॉज ऑल दीज कंट्रीज आर इन लीस्ट डेवलपिंग कैटेगरीज और डेवलपिंग फेज। तो डेवलपिंग फेज में द पॉपुलेशन इज ऑलवेज हाई, ऐसा कोई पॉपुलेशन क्लस्टर बताने जैसा कुछ है नहीं क्योंकि स्मॉल एरिया है, ठीक है। मेजर कैपिटल्स आर द पॉपुलेशन क्लस्टर, बाकी रूरल एरिया सारे, ठीक है। दिस इज अ मेथड वेयर द राइस have been widely spaced or the saplings, there is a wide space between the saplings, ठीक है, उसके ऊपर काम करते हैं वो लोग। and organic methods have been used in this cultivation and all, इतना ही है इसका, ठीक है। it is less contaminating the water because अगर fertilizer वगैरह इतना यूज नहीं करेंगे तो how it will contaminate the water, ठीक है। इसे रिपीट करना है, that's it, यहाँ पे खत्म कर रहे हैं हम। राइस, कॉटन, शुगर केन, रिवर, रिवर रिपीट कर देता हूं। 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स आर हेयर इन दिस पर्टिकुलर एरिया। फर्स्ट इज इरावदी, इरावदी रिवर सोर्स इज तिब्बत, ठीक है, तिब्बत से वो आएगी एंड इट विल एंटर इनटू द म्यांमार एंड कटिंग अक्रॉस द अराकन योमा रेंज इट इवेंचुअली ड्रेन्स इनटू द अंडमान सी, ठीक है। अनदर रिवर इज हियर दैट इज रिवर साल्वीन which will be cutting this plateau, that is Shan plateau, and it will be drained into Gulf of Martaba, ठीक है। ये म्यांमार की रिवर है। द थर्ड वन इज दिस Mekong, Mekong also has a source in तिब्बत एरिया, ठीक है, यूनान प्रोविंस में, वहां पे, तो वहां पे आएगी। फर्स्ट इट विल एंटर इनटू लाओस, लाओस में सबसे बड़ा एरिया है इसका, वेयर इट हैज अ ड्रेनेज बेसिन, then it just cutting the borders of Myanmar and entering into the Cambodia, and finally it enters into the Vietnam and drains into the South China Sea, ठीक है। यहाँ पे it is also making the delta that is the world's second largest delta. First one is Ganga Brahmaputra delta. और कुछ बताना है इसमें? Yes, this plateau is Shan plateau, rich in iron, and this is Khorat plateau, फेमस फॉर आयरन एंड बॉक्साइट रिजर्व्स। गल्फ ऑफ थाईलैंड है, गल्फ ऑफ मर्तबा है। नीचे का मैं बता चुका हूँ, बंदर एस इज अ पॉइंट विच वाज द एपिसेंटर ऑफ अर्थक्वेक दैट अकर्ड इन 2004। बाकी हम सब ये कर ही चुके हैं, सेलेब सी, सुलू सी, फिलीपींस, लजन, स्प्रैटली आइलैंड्स आर देयर, ठीक है। अबव इसके जो है चाइना है, एंड टू द ईस्ट ऑफ इट वी हैव ताइवान, हांगकांग, ठीक है। ऊपर की तरफ से कल जाते जाएंगे। दिस वन SSI लिख दिया गया, SRI है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ठीक है। ऑनलाइन क्लास इज ओवर, आई एम गोइंग टू वाइंड अप द सेशन। इफ यू वांट टू नो एनीथिंग प्लीज लेट मी नो। फाइन, ओके, ठीक है। आप लोग जाओ अगर जाना चाहते हैं तो। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन।
ढाई बजे होगी, अभी पता लगेगा।